Let me ask you a question. और मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। Imagine if I were to ask you to draw a picture of what do you mean by success. और अगर आपको सफलता के बारे में अगर एक चित्र बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? What would be the picture that you would draw? I want you to just draw in your mind. और अगर आपको एक चित्र बनाना है आपको सफलता के बारे में तो आप किस प्रकार का चित्र बनाएंगे? What would be the image that you would draw? और आपको किस प्रकार का इमेज या दृश्य दिखेगा जो आप बनाएंगे? You don't have to be very spiritual in this. और आपको बहुत आत्मिक होने की जरूरत नहीं है इसमें। You don't have to draw a picture of a pastor or a missionary. और एक मिशनरी या पासवान के आपको चित्र नहीं बनाना है। Generally think, if you are to draw according to you what success is, what would be the image that you would draw? अगर आपको सफलता के बारे में अगर कुछ बनाना है, चित्र एक बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? Would you draw yourself standing before a big villa? या आप ऐसा चित्र बनाएंगे कि आप बहुत बड़े एक मकान के सामने आप खड़े हैं? Or would you draw yourself standing before an Audi or a Jaguar or a BMW? I hear GSTs are dropping, so you'll have plans to buy, I guess. और क्या आप ऐसा दृश्य बनाएंगे जहां आप काफी महंगी एक गाड़ी के सामने आप खड़े हो? But not on luxury cars, okay? That's only for chota cars. All those GSTs. Okay. Or what you would see in the image of success, I know what you want to achieve in your life. और अगर आपके जीवन में आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, हो सकता है आप उसका चित्र बनाएंगे कि जो आपको सफलता ऐसी लगे। Or imagine you achieved it and all the people are surrounding you to applaud you, congratulate you. Probably all the cameras and lights are on you. Imagine that. और आप इसको सोचिए कि अगर आप वो सफलता को हासिल कर लिए और कई लोग आपको घेरे हुए हैं और कैमराज आपको फोटो खींच रहे हैं और ऐसा दृश्य आप बनाना चाहेंगे? Anything wrong in those images of success? क्या इसमें कुछ गलत है इन सभी चित्रों में जो कि सफलता को दर्शाती है? Not necessarily. और बिल्कुल ऐसा नहीं है। As children of God, we all know that true and the real success is doing the will of God. लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमको पता है कि अगर हमें सफलता को प्राप्त करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है। At the same time, in His will, there's nothing wrong in having great desires and accomplishing great things. और उसके इच्छा के हिसाब से इन सभी अच्छी चीजों को और बड़ी चीजों को हासिल करने में कोई गलत नहीं है। But what do you call those moments? They are just moments of success. और वो क्षणों को जो हम कहते हैं वो सफलता के कुछ क्षण है। But where does the real success happen? लेकिन सही में जो आपको सफलता मिलती है वो कहाँ होती है? The real success happens in the way you live your daily life. और सही सफलता हमें वहाँ मिलती है जहाँ हम लगातार जो हमारा रोजाना जीवन जीते हैं उसमें। For many, success means that something is going to happen someday out of the blue and they're dreaming about some moment to suddenly happen. It doesn't happen that way. और कई लोग सोचते हैं कि सफलता इस प्रकार से है कि एक क्षण आएगा और जो भी चीज का वो सपना या दर्शन देख रहे थे वो पूरी हो जाएगी। Real success is already happening every day in your life in the way you choose to live your life. और जिस प्रकार से हम हमारा रोजाना का जीवन जीना बिताते हैं वही हमको सही सफलता मिलती To है। be very precise, your ordinary daily habits determine the success of your life. और हमारे जो दिन की जो आदतें हैं वो उसको दर्शाती है कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। You can look at your everyday life in two ways. और हमारे रोजाना जीवन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। Either you can look at every day you get up and you are having your breakfast, getting ready, entering into the mad rush and this traffic of Bangalore and facing all the pressures at office and coming back home and exhausted and having dinner, sleeping, and second day same repeat. You might see as a boring stuff and it's a drudgery, it's a burden, as a stressful thing. That's one way of looking at your life. और एक प्रकार से आप आपके जीवन को इस प्रकार से देखते हैं, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार करते हैं और सुबह की भीड़ में दौड़ में लग जाते हैं कि आपको आपके कार्य में पहुंचना है। वहां आप कार्य पे पहुंचते हैं और काफी सारा आपको तनाव से गुजरना पड़ता है। आप काम करते हैं, वापस आते, चाय पीते, घर वालों के साथ रहते और फिर सो जाते और फिर दूसरे दिन लगातार इस प्रकार से होता है और आप दिन बर दिन उस कठिनाई के या परिश्रम को करते हैं। एक तरह से आप इसे ऐसा देख सकते हैं। I think he deserves an applause for saying all of those things. The other way of looking at it is all those things can be the rhythms that are building up and moving you into the destination that God wants you to go. और दूसरी प्रकार से हम ऐसा देख सकते हैं कि जो दिन बर दिन आप कार्य कर रहे हैं वो एक आपका रिदम बना रही है ताकि जो परमेश्वर ने जो आपके लिए लक्ष्य रखा है आप उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। There's a choice before you. और आपके पास में चुनाव है। How do you want to look at your daily life? आपके रोजाना जीवन को आप कैसे देखते हैं? As a drudgery, a boredom,
burden, no meaning, or you want to look at them as a rhythm that is building up and moving you, giving you momentum, pushing you to the destiny that God has for your life. और आपके जीवन को आप कैसा देखते हैं कि एक कठिन परिश्रम है जो कि रोज बरोज आपको इस प्रकार से मेहनत करनी है, कष्ट करना है, दुख उठाना है, या एक इस प्रकार से रिदम को आप देख रहे हैं कि जिसको करते हुए आप परमेश्वर के लक्ष्य को हासिल करेंगे। Of course, only when those daily activities are made up of good habits, you can see them as a rhythm that is building it up. और अगर हमारी अच्छी आदत है और अगर हम उसको लगातार करते रहेंगे तभी हम देखेंगे कि हम उस प्रकार से रोज कार्य कर रहे हैं। This evening, I want to bring before you the importance, the significance of your daily habits. और आज शाम को मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो रोजाना की जो आदतें हैं या जो दिनचर्या है उसका कितना महत्व आपके जीवन में है। There's this person called Robert Gilbert, who is a motivational speaker and writer. He makes a very profound observation about habits. और रॉबर्ट गिलबर्ट नाम के जो एक व्यक्ति है जो कि मोटिवेशन स्पीकर है, वो इस प्रकार से जो रोजाना आदत जो हमारी होती है उसके बारे में कह रहे हैं। He says, first we form habits, then they form us. और पहले Conquer your bad habits or they will eventually conquer you. और पहले हम आदतों को बनाते हैं, उसके बाद आदत जो है जो हमारी वो हमको बनाती है। अगर हम हमारी बुरी आदतों पर हम विजय नहीं पाएंगे तो वो बुरी आदतें हम पर विजय पाएगी। If you don't conquer your bad habits, अगर हम हमारी बुरी आदतों पर विजय नहीं पाएंगे, I'm sure all of us are a mixture of both. We have certain good habits. We all had a good habit to come to church. Praise God. Good habit. There are many other bad habits as well. और हमारे पास में बुरी आदतें हैं और अच्छी आदतें हैं। अच्छी आदत यह है कि आप कलीसिया में आए हैं, और इस प्रकार से कई बुरी आदतें भी हो सकती है। If you don't identify, or you must be convinced of some of the bad habits in your life, and you must be willing to overcome them before they overcome you. और हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में कुछ बुरी आदतें हैं और उन बुरी आदतों पे हमको विजय पाना जरूरी है। I read about a story, about this great library of one of the great libraries in the world in Alexandria, Egypt. और अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में जो पुस्तकों का एक संग्रहालय था उसके बारे में मैंने एक कहानी पढ़ी। Once it caught fire and everything was burned down except for one small book. और एक दिन उसमें आग लग गई और जितनी भी किताबें उस संग्रहालय में थी वो पूरी जल गई, केवल एक ही किताब बची थी। A poor man who knows to read a little, he bought this book, for few pennies. और जो एक गरीब आदमी था वो कुछ पढ़ना जानता था, उसने एक इस किताब को उससे खरीद के लिया। There's nothing interesting about that book. और उस पुस्तक में कुछ ऐसा कुछ अद्भुत लिखा नहीं था। But inside that book there was an interesting piece of leather which was like a bookmark. और उस पुस्तक के अंदर में एक बुकमार्क था जो कि चमड़े का एक पतरा जैसा था। You all know those days people used to write on the leather skin of animals. और उस समय में जो पुराने जमाने में हम देखते हैं कि चमड़े पे लोग लिखते थे। So in this leather skin there was a secret of touchstone where you can find the touchstones. और उस चमड़े पर इस प्रकार से लिखा गया था कि जो पारस का पत्थर है उसके बारे में। Have you heard of touchstones? क्या आपको पता है ये जो पारस का जो पत्थर होता है उसके बारे में In कभी the आपने सुना है? ancient days there was a myth that they believed that this touchstone had the ability to turn any metal into gold, whichever metal it touches. और पुराने जमाने में एक मिथ ऐसा था या झूठी एक कहानी इस प्रकार से थी कि पारस का पत्थर है, अगर आप उस पत्थर से किसी भी चीज को छुएंगे तो वो सोना या चांदी बन जाएगा। But in actuality, there was a time when there was no modern techniques and equipments. These touchstones were used to test the purity of gold and silver. और जो अगर सही में सोने या चांदी को अगर परखना है तो पुराने जमाने में ये जो पारस का पत्थर है उसकी अगर वो सही है कि नहीं उसको परखा जाता था। So this man, for his astonishment, found the secret where to find the touchstone. और ये जो व्यक्ति है उसने जिसने एक किताब खरीदा था उस चमड़े के पत्र में उसको पता चला कि रहस्य कि ये पारस का पत्थर कहाँ मिल सकता है। He thought within for a moment, in a day my life can change from pauper to a crorepati if I can find the touchstone. और उसको लगा कि एक क्षण में उसका जीवन बदल जाएगा अगर उसको ये पत्थर मिल जाएगा, वो गरीब से बिल्कुल अमीर हो जाएगा। It was mentioned in that leather skin, the touchstones were among the pebbles that are on the Black Sea. और उस प्रकार से इसमें लिखा गया था वो चमड़े के पत्रे पे कि जो ब्लैक नदी है उसके पास में अगर आप जाएंगे तो वहां पे जो छोटे पत्थर होते हैं वहां पे आपको ये पारस का पत्थर मिलेगा। Black Sea, the sea where where it comes between
the Western Europe and Eastern Asia. That region is called Black Sea. और ब्लैक सी ये जो है जो यूरोप और ईस्टर्न एशिया के पास में हमको देखने मिलती है। So test stone looks like a pebble, dark pebble. और वो एक जो साधारण पत्थर के समान में आपको नदी के समुद्र के किनारे जो पत्थर है वैसा ही It रहेगा। just looks like a smooth pebbles like any other pebbles. और जो बाकी जो पत्थर है उसी के समान वो आपको दिखेगा। But the difference is, when you feel this pebble, it will be warm. While the other pebbles, when you feel it, it will be cold. और उसमें एक ही जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो पारस का पत्थर को आपको कैसे आप जान सकते हैं, वो सभी पत्थरों के समान साधारण रहेगा, लेकिन जब आप उसको पकड़ोगे तो वो थोड़ा गर्म रहेगा और बाकी जितने भी पत्थर है वो ठंडे रहेंगे। So this man, in pursuit of becoming rich and successful in a day, sells everything and goes and camps near the Black Sea. और ये व्यक्ति जिसको इस रहस्य के बारे में पता चला वो सब बेचकर उस ब्लैक सी के पास जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। What does he do? और वो क्या करता है? He picks up the pebbles, और वो पत्थर को एक एक उठाता है he feels it. और उसको महसूस करता है। If it is cold, और अगर वो ठंडा है, he was very wise too. और वो काफी बुद्धिमान था। He said, if I throw the pebble back, अगर वो पत्थर को वापस डाल देगा he may pick up the same pebble again. तो हो सकता है कि वो वापस से वही पत्थर उठाए। So whichever pebble was cold, और जो भी ठंडा पत्थर हाथ में आता he used to throw it back into the sea. तो वो उसको समुद्र में वापस फेंक देता। So the pursuit begins, okay? और तो उसकी वो कोशिश जारी हो गई। Day one, he picks up a pebble. और वो पहले दिन जाके पत्थरों को उठाता है, It is cold. वो ठंडा है He throws it into the sea. और वो समुद्र में उसे फेंकता So है। he kept on doing it all day long. और वो दिन भर इस प्रकार से करता है। One day goes, और दूसरे दिन जाता है, second day, तीसरे दिन, third day, तीसरे दिन, a week, एक सप्ताह, a year, एक साल, 3 years, 3 साल, but he was not giving up. लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। Every day he got into a rhythm. और हर दिन उसका इस प्रकार से कार्य हो गया। Pick the stone, पत्थर को उठाना, feel it, और महसूस करना, throw it. और फेंकना। Pick the stone, पत्थर को उठाना, feel it, महसूस करना, throw it. और फेंकना। And one day after 3 years, और एक दिन 3 साल के बाद में he picked up a stone, pebble, एक पत्थर उसने उठाया that was warm. और थोड़ा वो गर्म था, Before he even realized, he had thrown it into the sea. और उसको महसूस होने से पहले ही वो फेंक देता है। Because he had got into that rhythm and the habit of throwing back the stones into the sea. क्योंकि उसकी आदत हो गई थी लगातार इस प्रकार से करने की, वो पत्थर को उठाता, महसूस करता और फेंक That's देता। how strong habits can have control over our lives. और इसी प्रकार से जो हमारी आदतें हैं हमारे जीवन को नियंत्रण में रख सकती है। We get into an habit, अगर हम किसी आदत में पड़ जाते we हैं make habits, और हम आदतों को बनाते हैं, then habits make us. और उसके बाद आदतें हमको ढालती है। You know, if you look at any successful person in this world, इस संसार में अगर कोई भी सफलता पाए हुए व्यक्ति को हम देखेंगे, either in a secular history or biblical history, अगर हम प्रभु के वचनों में या संसार में देखेंगे, they're all men and women of great habits. और ये जो महान स्त्री या पुरुष थे जिनकी अच्छी आदतें थी। Even when you look at the life of Jesus, अगर हम यीशु के जीवन को भी देखेंगे, of course, he's the most successful person in the world, right? और इस संसार में वो सबसे सफलता पाया हुआ व्यक्ति But है। probably in his time, nobody saw him as a success. और हो सकता है कि उसके समय में किसी ने भी नहीं कहा होगा कि ये He सफल did not व्यक्ति own है। anything in this world. और इस संसार में उसने कोई भी चीज को हासिल नहीं किया, He had no bank balance. कोई बैंक बैलेंस नहीं था, He had not authored any books. और कोई किताब उसने नहीं He had लिखी, not built any establishments. और कोई उसने महान चीजें नहीं He बनाई। had not traveled, probably you all have traveled more than Jesus. और हो सकता है उस कई जगह वो नहीं गया, आप प्रभु यीशु मसीह से He ज्यादा would have जगह seen गए। as a failure. और हम उसको एक असफल व्यक्ति के रूप से But देख सकते we हैं। know that he came to fulfill the mission for which he was sent, to seek and save the lost. और लेकिन हमको पता है कि जो कार्य उसे दिया गया था लोगों को ढूंढना और उन्हें बचाना, उसके लिए But वो if आया। you observe his life, even Jesus had cultivated intentionally some great habits in his life. लेकिन जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो उसने अपने जीवन में कुछ आदतों को बनाया था और उस प्रकार से उसने उसको सिंचा था। There are habits concerning different areas of our life. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ आदतें हो सकती है। You can have habits concerning your finances. और हमारे जो धन संपत्ति को लेके हमारी कुछ आदतें हो You सकती can है। habits concerning your health and diet. और हमारी जो सेहत को या किस प्रकार से हम खाना खाते हैं उस चीज के लिए आदत हो You सकती can है। have sleeping habits, eating habits, and whatever. और आपकी सोने की आदत होती है, खाने की आदत हो सकती है, अलग अलग प्रकार You की can आदतें। have habits related to your career and profession. और आपके जो
सेवा आपकी कार्य जो है और आपका करियर को लेके आपकी आदतें हो सकती You है, can have habits related to your hobbies. और आपकी जो हॉबीज है उसको लेके आपकी कुछ आदतें हो सकती Great, है, all are great. और ये सब अच्छे हैं, महान But है। I would like to focus upon spiritual habits of Jesus Christ. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मिक आदतें थी उसके बारे में। I believe when you choose to have spiritual habits that will make you grow spiritually, the Holy Spirit will take over your life and make you grow in every other area of your life. और जब हम इस आत्मिक आदतों को हम लगाएंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि वो पवित्र आत्मा उसको नियंत्रण में लेगा और आपके बाकी जीवन की जितनी भी आदतें हैं उस पे आपको सफलता देगा। I want you to understand success in any area of your life. It does not happen like that one big day. It has to be, intentionally built upon day by day and pursue it to see those things that we're dreaming about come to pass. Otherwise, dreams will only remain as dreams. और सफलता जो है वो आपको एक दिन ऐसा बड़ा दिन आएगा और महान दिन आएगा और आपको तुरंत सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए संकल्प करना है और संकल्प रख के उस प्रकार से रोज बरोज उन आदतों को आपको करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। How many of you are interested this evening to know what would have been the habits that Jesus cultivated in his life? आप में से कितने लोग उत्साहित है और ये जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी आदतों को ऐसा रखा कि जिससे उसे सफलता मिली? He had many habits, और उसको कई सारी आदतें थी many great habits. और कई महान आदतें उसकी थी। I would like to encourage you to read the Gospels, observe his life carefully, and look at what he did every day. और अगर हम सुसमाचार को हम पढ़ेंगे और उसके जीवन को हम देखेंगे कि रोज बरोज वो किस प्रकार से जीवन बिताता था। But I would like to highlight 3 of his habits that is explicitly mentioned. और यहाँ पे मैं 3 विशेष रीति से जो जिसको दोहराया गया है वचनों में, उन आदतों के बारे में बताना चाहूंगा। First one, Luke chapter 4 verse 16. और पहला हम देखेंगे लूक इसका 4 अध्याय और 16वें वचन में। And he came to Nazareth where he had been brought up, and as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day and he stood up to read. और यहाँ पे लूका इसका 4 अध्याय और 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपने रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। The Greek word used for custom is ethos, which means an habit, a practice or established usage. और यहाँ पे एक जो यूनानी भाषा में जो शब्द रीति के लिए जो या कस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया है वो ईथोस है, जिसका मतलब होता है कि आप उसको लगातार आप करते हैं। It is something done regularly, almost second nature. और ये आप लगातार उस प्रकार से करते हैं और वो आपके नेचर में उस प्रकार से ढल जाता है। So, according to this verse, what is the habit of Jesus? और इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की क्या आदत थी? He had the habit of going to synagogue regularly. और उसकी आदत थी कि वो लगातार आराधनालय में जाता था। What do you mean by synagogue? और ये आराधनालय का मतलब क्या होता है? During Jesus' time, there are 2 kinds of religious places. और यीशु के समय में 2 प्रकार के आराधना की जगह होती थी। One is a temple and other is a synagogue. और एक था मंदिर, दूसरा आराधनालय। Synagogue, a temple is a place where people went to offer sacrifices. और मंदिर वो जगह था जहाँ पे लोग बलि को चढ़ाते, That was a बलिदान place देते। where people used to go for pilgrimages. और वो जगह थी जहाँ पे लोग उपासना के लिए जाते। That was a place where people went to celebrate various feasts. और वहाँ पे लोग अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाने जाते। But temple was in Jerusalem. It's not that every day it would be possible for people to go to temple. और जो मंदिर जो था वो यरूशलेम में था और लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा कि हर रोज वो मंदिर में जा But सके। spread across the region of Judea and Roman Empire, there was synagogues where Jewish people met together for spiritual purposes. और यहूदा और उसके सभी क्षेत्रों में जहाँ पे रोमी लोगों का सरकार था, वहाँ पे आराधनालय थे अलग अलग जगह पे जहाँ पे यहूदी लोग जाके आराधना करते। If you look at the history, synagogues were first began when Jewish people were thrown into exile in the nation of Babylon. अगर हम इतिहास को देखेंगे, जब यरूशलेम यहूदी लोगों को जब बंदीवास में बेबीलोन में लेके गया था, वहां पे इन आराधनालयों को बनाना चालू हुआ। When they were in Babylon, there was no temple to worship. और जब वो बेबीलोन में थे, वहां पे कोई मंदिर नहीं था जहां वो जाके उपासना कर सके। So they came together into small groups to continue to maintain the spiritual life. और वो एक छोटी छोटी संख्या में मिलते, एक ग्रुप में मिलते और वहां पे वो जाके आराधना करते। Synagogue means very simple. Sin means together. Goge means to come, coming together. It's a spiritual gathering. और सिनोगॉग का साधारण सा अर्थ है, सिन का मतलब
to come together. Sin means together. और एक साथ में मिलना, इसका वो सिनेगॉग या आराधनालय का मतलब होता है। So what does this tell us is Jesus valued spiritual gatherings. और यहाँ पे महत्व की चीज हमको ये देखनी है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो लोगों के साथ संगति रखना, उनको काफी महत्व देते In थे। Jesus' times, people met synagogue at least once in a week on the day of Sabbath. और यीशु मसीह के समय में लोग कम से कम सप्ताह में एक बार आराधनालय में मिलते। In addition to that, they met on Mondays and Thursdays for praising, for worshiping, to read Torah and to hear the teachings of Torah. और उसके अलावा वो सोमवार और बुधवार को मिलते, जब वो पहली जो 5 पुस्तकें उसको पढ़ते जो कि तोरा है, और वहां पे आराधना करते। In addition to that, synagogues were daily open for any time for people to go and pray and read the word. और उसके अलावा आराधनालय सप्ताह के पूरे 7 दिन खुला रहता है, जब भी कोई जाता वहां पे वचन को पढ़ सकता और आराधना कर सकता। Any devout Jewish person would go to synagogue at least thrice in a week. और जो भी यहूदी भक्त होता, वो कम से कम सप्ताह में 3 बार आराधनालय में On the जाता। Sabbath day, there were 2 gatherings, one in the 3rd hour and in the 9th hour, that is 9 a.m. in the morning and 3 p.m. in the evening. और सबके दिन वो 2 बार वहां पे आराधना होती, जो कि सुबह 9 बजे और शाम को 3 बजे। You think it was necessary for Jesus to go to synagogue? क्या आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह को जरूरी था कि वो आराधनालय में जाए? Was there anything for him to learn? क्या उसको कुछ सीखने की जरूरत थी? Why would he go to synagogue? और वो क्यों आराधनालय में उसको जाना जरूरी था? Think about it. जरा सोचिए इसके बारे में। I imagine Jesus going even before the rabbi could come to the synagogue. और जब वहां पे रबाई आने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह हो सकता है कि पहले पहुंच जाए। Jesus valued spiritual gathering. और प्रभु यीशु मसीह जो आत्मिक जो संगति थी, उसको महत्व देते थे। The equivalent of synagogues in our times is your church, is your life groups, your spiritual gatherings. और जो आराधनालय के समान ही हमारे जो कलीसिया है, जहाँ पे हम रविवार को मिलते हैं, उसके प्रकार जो हमारे लाइफ ग्रुप है, ये सब उसको दर्शाते हैं। Do you have the habit of coming to church regularly? क्या आपकी आदत है कि आप रविवार को हर समय आप कलीसिया में आते Do हैं? you have the habit of going to life groups regularly? क्या आपकी ये आदत है कि आपकी जो गृह कलीसिया है, लाइफ ग्रुप है, आप उसमें लगातार जाते Do हैं? you have the habit of valuing the spiritual gathering of people to come to participate in it regularly? क्या आपकी ये आदत है कि जो आत्मिक जो संगति हमें मिलती है, आप उसको महत्व देते हैं, आप वहां पे जुड़ते हैं Now, I लोगों के साथ? understand sometimes you might have an unavoidable reason. और मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि कई बार आपकी परिस्थिति ऐसी होगी कि जहाँ आप नहीं आ सकते I हैं, also understand some might be working late. और हो सकता है कि आप लेट काम कर रहे हो। But what about others? लेकिन दूसरों के बारे में क्या? Are we valuing the spiritual gatherings the way Jesus valued? क्या हम उसको महत्व देते हैं आत्मिक संगति को, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने महत्व दिया था? Instead of making this habit, we have another habit. और ये आदत के अलावा हमारी दूसरी और आदतें हैं। Hebrews chapter 10 verse 25 says, the audience of the author of the Hebrews, they had another interesting habit. और इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 25वें वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों की कोई और आदतें थी। He writes, not neglecting to meet together as is a habit of some. Some made another habit. What was that habit? और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है कि वो एक दूसरे को समझते रहे। What was that habit? और उनकी आदत क्या थी? Habit not to meet together. कि वो लोगों से ना मिले। While Jesus had the habit of going often together, these people made a habit not to go to the meetings together. और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आदत थी कि वो आराधनालय में जाते और लोगों के साथ संगति ये- रखते, यहाँ पे इन लोगों की आदत थी कि वो इस प्रकार से कभी नहीं Here मिलते। we're called to encourage one another to come together all the more as you see the day of coming of the Lord drawing near. और वहां पे उनको उत्साहित किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि जैसे आप दिन को निकट आते हुए देखें तो आप लगातार इस प्रकार से मिलते रहे। It is in the life groups, in the small groups, when we come together, that's where you learn to learn the word of God. और जो छोटी संगति होती है, लाइफ ग्रुप होती है, वहां पे हम जब हम मिलते हैं तो वहां पे हम प्रभु के वचनों को हम सीखते हैं That's where you learn to pray. और वहां पे हम प्रार्थना करना सीखते That's हैं the way you learn to share and testify. और वहां पे हम हमारी गवाही देना सीखते हैं। There's so many, all the development, the growth and the spiritual life happens in the life groups and small gatherings. और जो हमारी बढ़ोतरी है वो इन छोटी छोटी सी जो गैदरिंग्स है उसमें होती है। And we have some amazing people in this church who have organized, the host, the life groups. It's lots of effort, but sometimes we don't reciprocate with the seriousness that it deserves. और ये जो हमारी कलीसिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को खोला है, जाके वहां पे आप आके उनके साथ में आराधना कर सकते हैं, तो उनके साथ में आप जुड़िए। I want you to take these gatherings seriously. If Jesus
took the spiritual gather seriously and he made a habit of it, don't you think you and I should have the same habit? जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना महत्व दिया कि जो आत्मिक संगति है उसमें वो जुड़ सके, तो हमें कितनी जरूरत है कि हम भी इस प्रकार से उसको महत्व दें। In my personal experience, I come across very creative excuses. People come up not to come for spiritual gatherings. और मेरे जो पासवान के जो जीवन में मैंने कई लोगों से ऐसे कारणों को सुना है कि वो क्यों नहीं आते, Probably I hear excuses which no HR will hear them. और जो HR नहीं सुन सकता है ऐसे जो The excuses that he won't hear, probably I hear them. और जो उनको नहीं पता होंगे ऐसे एक्सक्यूज मुझे पता चलते हैं। You know, and one of the lame excuses I hear is when some meeting, some fasting prayer, some gathering of the church is organized. If I ask people why you are not there, अगर मैं किसी से पूछूं कि उपास प्रार्थना या कोई कलीसिया या सभा में आप क्यों नहीं आए, तो they said, Pastor, we were praying at home with the family at that time. और तब हम हमारे घर में बैठ के हम प्रार्थना कर रहे थे एक साथ में। It is good to pray together in the family. और ये काफी अच्छा है कि आप घर में बैठ के परिवार के रूप में आप प्रार्थना करें, It's good to make your own plans, और आपकी स्वयं की आप योजना रखे, वो अच्छी बात but है, not parallelly to the plans of the church. लेकिन उसके साथ नहीं जबकि कलीसिया की कुछ योजना आपके लिए है। Sometimes I feel like I give the annual calendar of events to you और जब मैं आपको पूरा वार्षिक कैलेंडर आपको देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, so that you can plan your holidays accordingly. ताकि आप आपकी जो छुट्टी है उस प्रकार से आप आयोजन कर सके। But sometimes I feel church people look at the calendar, plan something on the exact same days. और जब छुट्टियों को वो देखते हैं, तो जब भी वो कार्य सभा होती है तभी वो अपने यात्रा का तैयारी करते हैं। Hello? The calendar is not given to you for you to make some plans on those. You tell you that we already got some plans. और जो आपको वार्षिक कैलेंडर दिया है वो इसलिए नहीं कि आप उसको देखें और तब अपने यात्रा का प्रयोजन करें या आप छुट्टियां मनाएं। And now you compare your life with Jesus and tell me how serious are you about in your habit of valuing. और आप Do you value this spiritual gathering? और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह की जो आदतें थी और हमारी जो आदत है, आप उसकी तुलना कीजिए और देखिए कि किस प्रकार से वो आत्मिक संगति के लिए कितना महत्व देता I'll था। tell you, it might not look very serious, but it's very critical for us to grow in our spiritual life. और ये आपको काफी गंभीर पूर्वक नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए ये काफी मायने रखता है। Many people think that coming one Sunday in a church is great job. और कई लोग सोचते हैं कि रविवार को एक दिन अगर मैं कलीसिया में आता हूँ तो मैंने बहुत महान कार्य कर लिया। Now, these days the Malayalis all excited about the Onam Sandhya. और जो हमारे केरला के भाई बहन है वो काफी उत्साहित है ओनम संध्या के लिए। Okay, Sandhya, whatever. That is a heavenly language. Only heavenly people can talk. You know. So, or imagine that every Sunday you come for a extravagant, lavish buffet. और हर रविवार को आप शाम को आते हैं और आपके सामने काफी अच्छा खाना तैयार किया है। All right, are you imagining? क्या आप ये सोच रहे हैं? The best spread you have. और जो सबसे अच्छा तैयार किया हुआ खाना आपके लिए And बना है। Sunday you come and relish a delicious buffet. और वो रविवार को आप आते हैं और शाम को आप पेट भर के वो सब खाने को And खाते हैं। imagine that you don't anything eat after that for a week. और उसके बाद में अगले सप्ताह भर आप कुछ भी नहीं खाते हैं, तो How do you think your spiritual condition will be? तो आप सोचिए कि जो आपकी आत्मिक स्थिति कैसे रहेगी। You're weak through the week because you're not having the spiritual food that spiritual man inside of you needs. और आप कमजोर हो जाएंगे क्योंकि सप्ताह भर आपको जो आत्मिक भोजन जो चाहिए आपके अंदरूनी आत्मिक के लिए वो आपको नहीं मिला है। No wonder we are defeated by all that is thrown up at our life, the pressures of life, the stress of life, the anger, the lust, the sin. We are just a sitting duck for the enemy to attack us. और इसलिए हम समय हारे हुए रहते हैं, हताश हो जाते हैं क्योंकि हमने शैतान को वो मौका दे दिया है, उसके पाप और सब चीजें हमारे जीवन में आ रही है और एक बदक के समान है जो कि कभी भी हमको मार के गिरा सकता है। Then wonder why my life is like this, why am I not being able to overcome, why am I not being blessed, why I don't see any changes in life, and you'll go on and on. और तब हम सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, क्यों मैं परिवर्तन को नहीं देख रहा हूँ, क्यों इस प्रकार से मेरा जीवन हताश या निराश है, और उस प्रकार से हम आगे और आगे बढ़ते हैं। Jesus, being the Son of God, valued spiritual gatherings. There was no need for him to go to synagogue, but he went to synagogue as a habit, not by chance, not by accidentally, not occasionally, as an habit. और यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र होने के बाद में जा रहा कि उसको जरूरत नहीं थी कि आराधनालय में जाना, लेकिन उसने अपनी जीवन में ये आदत बनाई थी कि वो हर समय
आराधनालय में जाता था। All right, hallelujah. हालेलुया। Let's come to the second. आइए दूसरे मुद्दे को हम देखेंगे। Luke chapter 22, verse 39. और लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और 39वां वचन। And he came out and went as was his, everybody say, custom. और Nobody said. I said, shout custom. कस्टम। To the Mount of Olives, and the disciples followed him. और तब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 39वें वचन में, तब वह बाहर निकल कर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। He had another habit, और यहाँ पे एक और आदत हम देखते हैं, that to spend time in solitude. और वहाँ पे कि वो एकांत में अपने समय को बिताता था, He spent time alone. और वो एकांत में समय को बिताता। In this context, hours before he was caught and crucified, he spent hours being in solitude, being alone with God. और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वाक्य के बाद में वो उसको प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया, लेकिन उसके पहले वो समय बिताता है एकांत में परमेश्वर के साथ। What do you think that gave Jesus the strength to go through all the betrayals, trials, mockings, whippings, and the nails of the cross? What do you think that gave him the strength? और आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह को कैसे ताकत मिली होगी कि जो भी लोगों ने उसको धोखा दिया, उसके ऊपर थूका, उसको कोड़ों से मारा गया, उसको कीलों से उसको ठोका गया और क्रूस पर चढ़ा गया, वो कैसे उसने सहा? He got the strength by being in solitude, in time alone with God. और उसको वो ताकत मिली जब वो एकांत में परमेश्वर के साथ में था, तब उसे वो सामर्थ मिली। Our generation loves to be alone. और जो हमारी जो जनरेशन है, जो सदी के लोग हैं, वो अकेलेपन में रहना चाहते हैं। Husband wants to be away from their wives, and wives wants to be away from their husbands. और जो पति है वो पत्नी से दूर जाना चाहता है, पत्नी पति से दूर जाना चाहती है। Parents want to be away from the children, and children want to be away from their parents. और जो माता पिता है वो अपने बच्चों से दूर जाना चाहते हैं, बच्चे माता पिता से दूर रहना चाहते हैं। Now God said it is not good for a man to be alone, और परमेश्वर ने कहा कि ये मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है कि वो अकेला रहे। but our people say, leave me alone. और लेकिन हमारे जो लोग कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, But what they're alone for? लेकिन वो अकेले किस लिए है? Not to be with God, और परमेश्वर के साथ मैंने but रहने के with लिए नहीं। their extension of their body part called mobile phones. और लेकिन उनका जो शरीर का एक भाग जो बन गया है मोबाइल, उसके साथ में जुड़े And रहते हैं। there's one more sermon, a teaser I'm giving on how to handle social media. और एक और संदेश आने वाला है कि सोशल मीडिया को हम कैसे हैंडल करें उसके You know, बारे में। Jesus constantly withdrew. He was busy. People are waiting to hear his teachings. People are waiting to be, healed, delivered, set free. But he used to literally pull himself off, withdraw, and go to be with God. और यीशु मसीह काफी व्यस्त थे, लोग उसको हर समय घेरे रहते, लेकिन यीशु मसीह हर समय उनकी आदत थी कि वो स्वयं को उस भीड़ से बाहर निकालते और एकांत में जाते And spend time in solitude. और वो एकांत में अपना समय को बिताते। There is a slight difference between solitude and prayer. और जो प्रार्थना और एकांतपन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। Solitude is not prayer, but prayer can happen in solitude. और जब हम एकांत में रहते तब हम प्रार्थना नहीं करते, हो सकता है कि हम वहां पे प्रार्थना भी कर पाए, लेकिन ये दोनों भिन्न है। Solitude is just to be quiet, still, to reflect, to meditate, to contemplate, to be quiet. और एकांतपन में जब हम शांत रहते हैं, वहां पे हम अपने आप का प्रतिबिंब देखते हैं, हम विचार करते हैं, हम अपने मनों का विचार करते हैं कि हम किस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं। Solitude can be a space and where prayer can happen. और एकांत जो ऐसी जगह है जहाँ पे हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। It can be compared to a garden. Solitude can be a garden, and prayer can be the flowers that grow in the garden. और जो एकांतपन है उसको एक बगीचे के रूप से हम देख सकते हैं जहाँ पे फूल भी उगते हैं और फूल एक प्रार्थना समान है। I want to draw this distinction because prayer means more often it is understood as, even though it should be dialogue, it's more of a monologue. और हो सकता है जो प्रार्थना है जो कि एक दूसरे के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए, लेकिन कई बार वो एक ही तरफ से वो बात होती है। We keep praying and praying and talking, pouring out our frustration or anger or complaints, everything each day, the same prayer, Monday, Tuesday, Wednesday. I don't see any difference. I don't know how much different our prayers are from each day. We keep praying the same thing again and again. और हम जब प्रार्थना करते हैं लगातार हम वही प्रार्थना करते हैं, हमारा जो कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, जो हमारी मुसीबत है उसको बताते हैं और लगातार हम उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हो सकता है सप्ताह भर उसी प्रकार से हम लगातार प्रार्थना करते रहे। Poor God. और बेचारा प्रभु, He has to hear the same thing from the same people, the same list again and again, each day. और उसको लगातार उन्हीं लोगों से वही चीजें बार बार सुननी पड़ती है, वही सारी चीजें। Thank God I am not God. Thank God you are not God.
Thank God that God is God. और प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं प्रभु नहीं हूँ और आप लोग प्रभु नहीं है, लेकिन प्रभु ही केवल प्रभु है। You know, solitude is to be quiet and still. और जो एकांतपन है वहाँ पे हमको शांत रहना है और वहाँ पे शांत बैठना है। It's not loneliness, और ये अकेलापन नहीं है, but to be with a person who loves you the most, who cares for you the most, who understands you the most. और वो हम ऐसे उस व्यक्ति के साथ में हम हमारा समय बिताते हैं जो कि हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है, जो हमें समझता है, जो हमारे बारे में ध्यान रखता है। It's not isolation, but it's incubation where God shapes your life. और वो एक ऐसा आइसोलेशन नहीं है, लेकिन हम उसके साथ में बैठते हैं जहाँ पे प्रभु हमको ढालता है। All great men of God at the times of solitude. और जितने भी प्रभु के महान लोग थे उन्होंने एकांत में समय को बिताया। How many of you want to practice this? आप में से कितने लोग इसको तैयारी करना चाहते हैं? Start with 5 minutes. और 5 मिनट की से आप शुरुआत कर सकते Come हैं and tell me your experience. और आप आके मुझे अपना अनुभव बताइए। It's not going to be easy, let me caution you. और ये आसान नहीं होगा, मैं आपको बताना The चाहता हूँ। moment you go and still and be quiet, और जैसे ही आप जाके एकांत में शांत बैठना चाहेंगे, first of all, put your phones aside somewhere. और सबसे पहले आपके जो फोन है उसको उठा के बाजू में रखिए। बाजू में नहीं, दूर रहे. उठा के दूर रख दीजिए। Okay, बाजू means gone. साइड इज बाजू। All right. So when you become still, you know, all that is within is going to rush up and come into your mind. और जब जाके आप एकांत में बैठेंगे और शांत रहेंगे तो जितना भी आपके मन के विचार है वो तुरंत से आपके घर करने लगेंगे। What is inside of you? और आपके अंदर में क्या है, Think about it. जरा सोचिए Don't tell me. और मुझे बताइए मत, I don't want to know. मैं जानना नहीं चाहता। Don't tell your neighbor also. आपके पड़ोसों की भी मत बताइए। What is inside of you? आपके अंदर में क्या है, Everything will come out. और वो सब बाहर निकल के आएगा। Anger, गुस्सा lust, और व्यभिचार frustration, और परेशानियां hopelessness, और निराशा है heaviness, और गंभीरता है anxiety, और एंजाइटी worry. All it's और going to चिंता है। just have come into your mind. It will just come before you. और ये सब चीजें आपके दिमाग में आपके सामने आ जाएगी। Do not get scared by looking at what is coming out of you. और इससे आप डरिए नहीं, भयभीत मत होइए जो भी चीजें आपके अंदर से बाहर आ रही है। But persevere through all those thoughts, then you'll enter a moment of serenity. At that moment, you'll understand what it means to be still and know that He is God. और इन सब जब विचार आते हैं तो आप धीरज मत छोड़िए और आप आगे बढ़ते रहिए, और थोड़े क्षण के बाद में एक ऐसा मौका आएगा जबकि आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, और वही क्षण है जब आप प्रभु से बात कर सकते So हैं। the first habit that Jesus had was He had the habit of going to spiritual gatherings. और जो पहली जो आदत जो यीशु मसीह की थी वो थी कि वो जो आत्मिक संगति थी वहां पे वो जाता था। The second habit was that He spent time in solitude. और दूसरी आदत थी कि वो एकांत में समय बिताता। And the last and the third one, और आखिरी और तीसरी, Mark chapter 10 verse 1. और मरकुस रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और पहले वचन में हम देखते हैं। And he left there and went to the region of Judea and beyond the Jordan, and crowds gathered to him again. And again, as was his custom, कष्ट। he taught them. और यहाँ पे हम देखते हैं मरकुस उसका 10वां अध्याय और पहले वचन में, फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सीमा और यरदन के पार आया, भीड़ भी उसके पीछे इकट्ठा हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें उपदेश देने लगा। Jesus had the habit of teaching scriptures. और यीशु मसीह की आदत थी कि वो लोगों को वचन सिखाता। That means he had to be saturated himself with the scriptures. और इसका मतलब यह है कि उसको स्वयं को पहले वचनों से स्वयं को भरना जरूरी है। Third habit, Jesus was fully filled, immersed, baptized in the scriptures. और तीसरी जो आदत थी, जो प्रभु यीशु मसीह जो थे वचनों से स्वयं को भर के थे So, और उससे उन्हें बपतिस्मा लिया Everything था। that came out of him was scriptures. और जो भी चीज उनसे बाहर निकल के आती वो प्रभु के वचन होते। Imagine if Jesus wouldn't have taught, what would have happened? आप सोचिए अगर प्रभु यीशु मसीह अगर शिक्षा नहीं देते तो क्या होता। Imagine if Jesus would have done only healings, miracles, casting of demons and wonders, and he would have gone. और केवल प्रभु यीशु मसीह आते और अन्य प्रकार के चमत्कार करते, लोगों को चंगाई देते, छुटकारा देते और चले जाते तो क्या What होता? would our situation be? तो क्या हमारी परिस्थिति क्या होती? We only look at miracles and wonder at them. और हम केवल उसके महान चमत्कार को देखते और सोचते कि ये कैसे हुआ। We will not know how to get saved.
और हमको पता नहीं चलता कि हम We कैसे will not बचाए know गए who God is. और हमको पता नहीं चलता प्रभु कौन है We will not know how to overcome sin. और हमको ये पता नहीं चलता कि हम पाप पर कैसे विजय पा We सकते will हैं not know how to overcome Satan. और शैतान के ऊपर हम कैसे विजय पा सकते We will हैं not know how to handle relationships. और जो संबंधों को हम कैसे संभाले वो We पता will नहीं not चलता know how to handle life. और जीवन को हम कैसे संभाले वो पता नहीं चलता Do you appreciate the teachings of Jesus as much as you appreciate the wonders of Jesus? क्या आप महत्व देते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसकी जो शिक्षा है वो उसने कितनी महत्व की है जैसे कि उसके अन्य चमत्कार भी है Sometimes some people can have an unhealthy wonders about Jesus, prophecies, healings, miracles, which are great, but we should value scriptures more than any of those things. All those things can fail, all those things can go wrong, but scriptures can never go wrong. Heaven and earth will pass away, but Jesus said, my word will not fail, will not pass away. और कई लोग महत्व देते हैं जो कि चिन्ह चमत्कार है या भविष्यवाणी है उसके लिए लेकिन उससे ज्यादा महत्व हमको प्रभु के वचन को देना है हो सकता है कि वो सारी चीजें फेल हो जाए लेकिन प्रभु का वचन जो है वो कभी असफल नहीं होगा वो अपने कार्य को पूरा You want to करेगा understand how much Jesus was saturated with the word of God? क्या आपको समझना जरूरी है कि प्रभु वचनों से कितना भरा हुआ था If you read like Luke chapter 2 verse 46 to 47, at the age of 12, I don't know what is your age, I will not ask you. At the age of 12, और he was sitting and discussing deep things about the scriptures with the experts of the law of his times. और लूका रचित सुसमाचार इसके दूसरे अध्याय 46 से 47 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह केवल 12 वर्ष का है और वो महान महान लोगों के साथ में वचनों का संभाषण कर रहा है God did not download all the scriptures into the system of Jesus and send him on earth. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह को सभी वचन दे दिए उसके दिमाग में और इस प्रकार से उसको भेजा He had to read and read and read and read and fill himself, eat and drink and make it a part of his life to the point that word became flesh. और उसको लगातार उसको पढ़ना पड़ा उसको स्मरण में रखना पड़ा और वो लगातार पढ़ता गया और उसके जीवन में इन शब्दों को हम देखते हैं और वो उसके अनुसार अपने जीवन को In बिताने Luke लगा chapter 4, when Satan comes to tempt him in the wilderness, what did Jesus do? और लूका उसके चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि जब शैतान उसकी परीक्षा लेने आता है तब यीशु ने क्या किया He did not say, do you know who am I? और उसने ऐसा नहीं किया है कि तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ I am the son of God. और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ Did he do that? क्या उसने ऐसा कहा He quoted scriptures. और उसने वचनों को कहा Satan does not care who you are. और शैतान नहीं जानता है कि आप कौन हो The one thing he's afraid of is the word. लेकिन वो एक चीज से वो डरता है वो प्रभु के वचन You cannot overcome Satan without the knowledge of the word of God. और प्रभु के वचनों के ज्ञान के बगैर आप शैतान पर विजय नहीं पा सकते In Luke chapter 4 verse 18 and 19, he quotes the prophecy of Isaiah that was being fulfilled in his life. और लूका रचित सुसमाचार इसका चौथा अध्याय और 18वें 19 वचन में देखते हैं कि यशायाह ने जो भविष्यवक्ता ने जो वचन कहे थे वो उसको बताता है How did Jesus understand the purpose, the mission of his life? और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन का उद्देश्य कैसे जाना He found it right in the word of God. और उसने उसे देखा प्रभु के वचनों में As he read the prophecies of Isaiah, there was a witness in his spirit. Hey, this is about me. This is my purpose. This is my mission. और जैसे वो यशा भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ता है उसने देखा कि ये मेरे बारे में वो वचन है ये मेरा दर्शन है How- इसे मुझे पूरा करना है How will you know the purpose of your life? आप कैसे जानेंगे कि आपके जीवन का From where उद्देश्य are क्या you है finding the purpose of your life? आपके जीवन का उद्देश्य आप कहाँ ढूंढ रहे हैं Or are living your life without any purpose is a question. क्या आप आपका जीवन बगैर किसी उद्देश्य से बिता रहे हैं It is in the word of God that we'll find out why we were created for and why we are saved for. और प्रभु के वचन में ही हम जानेंगे कि हमें किस लिए हमें सृजा गया है किस लिए हमारा निर्माण किया गया है Jesus was so saturated with the word of God even while dying on the cross when everything in him was coming out. Still he was breathing scriptures. और जब प्रभु यीशु मसीह इतना वचनों से भरे हुए थे जब उनका मृत्यु पे जब वो क्रूस पर चढ़े गए तब भी वो प्रभु के वचनों को गह रहे हैं Now sometimes we read this word, my God, why have you forsaken me? When Jesus uttered those words, we think those words are of hopelessness and despair and pain and loss. और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ये वचन को कहा हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया है कई बार हम सोचते हैं कि ये निराशावादी ऐसे वचन है और वो काफी हताश था उस समय But if you read closely, he was actually quoting Psalm 22. He was recitating the scriptures even while he was dying on the cross. लेकिन जब हम ध्यान से उसको देखेंगे तो वो भजन संहिता 22वें अध्याय के वचनों को उस समय कह रहा था जबकि वो जीवन की अपनी अंतिम आखिरी सांस को गिन रहा है तब भी वो प्रभु के वचन को बोल रहा है When you are squeezed from every side of your life,
will tell you what is inside of you. और जब हमें संसार की सब कोनों से अगर हमें दबाया जाएगा तो हमारे अंदर से क्या निकलेगा वो दर्शाता है, What is coming out of you. हमारे अंदर से क्या बाहर निकल रहा है। When all the pressures of all kinds hit your life, what is coming out of you. और पूरे संसार के जितने भी दबाव है अगर वो हमारे जीवन पे आते हैं तो हमारे अंदर से क्या बाहर निकल के If आता you है। had a habit of filling yourself with your scriptures, when you're squeezed from every side, scriptures will come out of you. अगर आपकी आदत है कि आप स्वयं को प्रभु के वचनों से लगातार भरते जाएंगे तो जब दुनिया का दबाव आपके ऊपर आएगा तब प्रभु के वचन ही आपके जीवन से बाहर निकलेंगे। Take time to read the word. और समय लीजिए कि हम प्रभु के वचनों को पढ़े Don't think you're too busy. और ये ना सोचे कि हम काफी व्यस्त है। I don't think you can tell me you're busy. Try telling it to God. Will He accept that? और हो सकता है कि आप मुझे कहे कि आप काफी व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर से आप कहिए सर। That's a common excuse that we all give. और ये एक साधारण सा जो बात है जो कि हम हर किसी को कहते हैं। You think all the people, Moses, Daniel, David, they were all people had no calm. और दानियल या दाऊद राजा और मूसा, क्या इन लोगों के पास में कोई काम नहीं था? You all think they're jobless people. उनके पास में कोई कार्य नहीं था? Hey, they were all prime ministers of those times, और वो सभी उस समय के प्रधानमंत्री थे, kings of those times. उस समय के वो राजा थे। But they made time. They're not waiting for time to come. They made time. They prioritized reading the word. और उन्होंने समय आने की राह नहीं देखी, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी ताकि वो समय प्रभु के साथ I बिता will सके। tell you, if you make the habit of saturating yourself with the word of God, in 5 years from now, I'm going to see you somewhere else. और अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी आदत बना देंगे कि आप अपने आप को प्रभु के वचनों से भर जाए तो अगले 5 वर्ष के बाद में आप कहीं और होगे। If not, I'll see you here only. अगर You'll नहीं be here only physically. If not, physically you'll be here, but I want to see you grow, whether professionally, spiritually. I want you to scale up, soar, grow, achieve great things for the Lord. और आत्मिक रीति से मैं चाहता हूँ कि आप कहीं महान जगह पे पहुंचे और कई चीजों को हासिल करें जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। Are you reading word occasionally? क्या आप प्रभु के वचन को कभी कभार पढ़ रहे हो? Are you trying to open your Bible like this and try to find what God is speaking for you to that day? और क्या आप प्रभु के वचन को ऐसा खोलते हो और सोचते हो और ऐसा उंगली रख के देखते हो कि आज प्रभु ये बोल रहा Are है? you waiting for Sandeep's daily devotions to come? और क्या आप राह देख रहे हैं कि भाई संदीप डेली डिवोशन भेजेगा? Are you उसमें सब waiting पढ़े। for some WhatsApp, forwards to come to know what God is speaking? और या कोई व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आएगा, उसमें से हम देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या है। Sometimes God may speak that way. I'm not denying that. और हो सकता है कभी प्रभु ऐसे भी बात करे, उसको मैं नहीं कह But रहा। read the word systematically, thoroughly, daily. Fill yourself with the word and watch how your life changes. लेकिन लगातार हम प्रभु के वचन को पढ़े, उससे हम अपने आप को भरते जाए और हम देखेंगे कि कैसे प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। And July 1969, 1969 at 10:56 p.m., something remarkable happened that changed the course of world history. और जुलाई 20th, 1969. Anybody born here? 28 जुलाई 1969 में कुछ महान कार्य हुआ। You know what happened that day? और क्या हुआ आपको पता है? Man stepped on the moon for the first time. और चंद्र पर पहली बार मनुष्य ने पैर रखा। Neil Armstrong and Buzz Aldrin, the two Americans, by this Apollo 11 mission landed on the moon. और अपोलो 11 मिशन के द्वारा 2 अमेरिकी नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ ही वो चंद्र पे चढ़े। That was an unthinkable, unimaginable feat that they achieved. और ये कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसा उन्होंने कार्य हासिल किया। It is said that for the spacecraft to escape the law of gravity, the amount of fuel that was spent in the initial few miles was much, much, much greater than the fuel that was spent after beyond the thousands of miles. और ये जो स्पेस क्राफ्ट है या जो ये रॉकेट है, उसमें जो पहले जो ईंधन लगता है जो जिससे कि वो ऊपर उठता है, वो काफी ज्यादा मायने में वो रखता है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? To make any new habit, to break away bad habits, initially you need lot of energy, lot of determination, lot of perseverance. और कोई भी नई चीज अगर आपको चालू करनी है, कोई भी नई आदत आपको बनानी है, तो उसके लिए आपको काफी उत्साह चाहिए, काफी ताकत चाहिए, काफी पहले मेहनत करनी जरूरी है। But if you're determined to break away from that inertia, from the pull of gravity of all those bad habits, and you take it forward, then it becomes a smooth sail. लेकिन जब आप निर्णय करते हैं कि जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, आप उसको छोड़ के पूरी कोशिश करेंगे कि आप उससे बाहर निकले,
तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप ऊपर जा सकते हैं। You want to become like Jesus? क्या आपको यीशु के समान बनना है? How many of you want to become like Jesus? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो यीशु के समान बने? Then you have to have the habits of Jesus. तो आपको यीशु की उन आदतों को करनी है। What are the habits of Jesus? यीशु की क्या आदतें थी? He had the habit of attending the spiritual gatherings. और जो वो आत्मिक संगति को वो जाता उसमें वो हासिल होता, हाँ, Make शामिल time होता। and make priority to be, whenever possible, to be part of all the spiritual gatherings of the church. और आप समय निकाले और उसको प्राथमिकता दे। जब भी कलीसिया की कोई भी आत्मिक संगति होती है आप उसमें जुड़े। Jesus had the habit of being in solitude, being alone with God. और प्रभु की आदत थी कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाते और प्रभु के साथ में समय बिताते। He had the habit of saturating himself fully daily with the word of God. और उसकी आदत थी कि वो हर दिन स्वयं को प्रभु के वचनों से भरते जाता। May I challenge you not to begin your day without reading the word of God. और मैं आपको ये चुनौती देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपके दिन की शुरुआत बगैर प्रभु के वचन को पढ़े आप चालू न करें। Your day will be a different day. और जब आप इस प्रकार से करेंगे आपका दिन वो बदल जाएगा। I'm not telling if you read the word, no problems will happen through the day. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो पूरा दिन भर आपको कोई तकलीफ नहीं The होगी। next week you don't come and tell me, Pastor, you told read the word. After reading and going on, I had more problems. और अगली बार आप आके ये मत कही कि पासवान मैं प्रभु का वचन पढ़ा और आपने कहा मैं उस प्रकार पढ़ा और ज्यादा समस्या मेरी आ गई। I'm telling you, when you read the word, the problems might come, but you'll have the power to overcome those problems. जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तब आपके जीवन में मुश्किलें तो आएगी लेकिन आपको सामर्थ मिलेगी उन मुश्किलों पर आप विजय को हासिल कर सके।